class of holding company. So a few more small adjustments that we are going to do, and then we'll finish up holding. Okay. So the first adjustment that we are going to do today is about miscellaneous expenditures. Here it is. So miscellaneous expenditures, or like you know that miscellaneous expenditures are expenditures like preliminary expenses, discount on issue of shares and debentures, underwriting commission, etc. Now there is a possibility that in the question in the balance sheet you are given this amount. The preliminary expenses, for example, is given in the balance sheet. Now when we will calculate, we consider all this, like all these kind of items are considered to be capital losses. Since they are capital losses, I mean, it already gives you the idea that how are we going to treat it. So if you remember, when we used to calculate goodwill, what we used to do was from price we used to deduct the cost, and from that we used to deduct the pre-acquisition reserves and surplus. Now since we get a goodwill, if we get a goodwill, let's say if we get a goodwill and there is another capital loss which is in the form of miscellaneous expenditure in the balance sheet. Now can any one of you tell me that in that case from that goodwill I am going to deduct this miscellaneous expenditure or I am going to add it? Anyone? I repeat, let's say you have got goodwill. फिर से बोलना, मुझे सुनाई नहीं दिया. मीनाक्षी क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, या तो चैट बॉक्स में लिख दो. If there is a goodwill, int is if there is a goodwill, we already know that miscellaneous expenditure is a capital loss. So are you going to add it or are you going to deduct it? This is my question. Bhavna, any answer? कुछ नहीं सुनाई दे रहा. चैट बॉक्स में लिख दो भाई, मुझे सुनाई नहीं दे रहा. Actually, yeah, somebody has written in the chat box. मीनाक्षी डिडक्ट कैसे डिडक्ट? मीनाक्षी एक बात बताओ, गुडविल क्या है? इट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल लॉस ओनली. यस और नो? गुडविल इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल लॉस ओनली. तो अगर तुम्हारे पास गुडविल आई है तो ये जो कैपिटल लॉस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट है उसको उसमें से डिडक्ट कैसे कर दोगी? कैपिटल लॉस में से कैपिटल लॉस डिडक्ट कर दोगी, ऐड करोगी ना. लॉजिक देती हूँ, जैसे प्राइस में से कॉस्ट माइनस किया, कॉस्ट माइनस करने के बाद तुमने क्या माइनस किया? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माइनस किया. जब प्रॉफिट माइनस किया तो लॉस ऐड करोगी ना. मीनाक्षी, इज इट क्लियर? ठीक है, राइट. So therefore if there is a goodwill, you add the miscellaneous expenditure, and which obviously means if there is a capital reserve, you deduct the miscellaneous expenditure. Is this adjustment clear? Because then only we are going to go to the next point. Okay, so this was the adjustment that I have just said. First adjustment for today was miscellaneous expenditure. So any kind of miscellaneous expenditure which you have in the balance sheet, you have to accordingly treat it, which means agar goodwill hai, so you're going to add it, and if there is capital reserve, you're going to deduct it. Now the second adjustment for today, अभी इसका example करेंगे. इन दोनों को पहले मैं बता दूं. Unclaimed dividend. So unclaimed dividend obviously means this is that part of the dividend that has not been claimed. Just a minute. So here the actually basic assumption you can say or so is that if there is any item appearing in the balance sheet of the subsidiary, अगर सब्सिडरी के बैलेंस शीट में आपको कुछ अमाउंट दिया हुआ है अनक्लेम्ड डिविडेंड का, तो ये अनक्लेम्ड है, क्लेम नहीं किया गया है. द कन्वेंशन इज दिस अमाउंट इज एडेड इन फुल द टोटल, सॉरी इन फुल टू द माइनॉरिटी इंटरेस्ट. जो भी अमाउंट है वो ये माना गया कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ये जो अमाउंट है अनक्लेम्ड डिविडेंड का, ये यहाँ पे ऐड करा है हमने. Okay, so with that, let's start with a question very quickly, all of you. We are going to just do, I'm going, like I said, only the adjustments because मैं बार बार आपको सारा
Calculation nahi कराऊंगी. You also have to do something. So illustration 25. Please all of you come on illustration 25. Please see. अच्छा इसमें एक थोड़ा सा problem है actually. Like where it has been acquired on 30th June. चलो ठीक है, इसको skip करते हैं, आगे चलते हैं, रुको. ठीक है, this is fine. ये मैं करा देती हूँ, आपको एक एग्जाम्पल भी समझ आ जाएगा इससे. बट यू आर सेइंग ना कि आपको ड्यूरिंग द ईयर वाला करना ही नहीं है. चलो छोड़ो, ठीक है, लीव इट. वन मोर एडजस्टमेंट वी आर गोइंग टू डू. उसमें बस टाइम रेशियो में काट देते हैं ना. हाँ, मतलब बेसिकली क्या होगा ना, अगर सपोज मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ जस्ट इन केस. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, अभी तक हमने ऐसा नहीं किया. इसमें ये लिखता है एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 30th जून 2019. तो मतलब अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने जो हैं ये प्री एक्विजिशन के हो गए. तो एक्चुअली ये जो 3 महीने हैं जो आपका प्रॉफिट है, आपके पास प्री एक्विजिशन का लेट्स से आगे क्या लिखा है उसने, ऑन 1st अप्रैल एस लिमिटेड जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टूड एट 60,000 एंड 20,000. मुझे पता है, लेकिन ये खाली प्री एक्विजिशन नहीं है. क्यों? क्योंकि 1st अप्रैल तक तो 60,000 है और 20,000 है, बट 1st अप्रैल के बाद 3 महीने और है, तो मुझे उन 3 महीने के लिए और प्री एक्विजिशन रिजर्व निकालना पड़ेगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस. You can check it out later also. So we will have to find out for the 3 months. Okay, it's actually given in the question also. So that's how you do it. For example, let me just give you an example. जैसे कि आप देखते हो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट देख लेते हैं बैलेंस शीट में. हम हमारा है 70,000 and at the end you have 50,000 I think. Yeah, 50,000 है. So we have 50,000 और मुझे पता है अप्रैल तक कितना था, 20,000. तो 50,000 माइनस 20,000 जो हो गया वो 30,000 है. बट दिस 30,000 इज फॉर द एंटायर ईयर. सो 30,000 का मुझे, इसमें से 30,000 12 मंथ्स का है, मुझे एक्चुअली 3 मंथ्स का चाहिए. सो 30,000 into 3/12 will actually become an additional pre-acquisition profit. That is the basic point that we have like missed, like when you said that, क्योंकि गाइडलाइन में नहीं दिया कि ड्यूरिंग द ईयर होता है तो क्या होता है. तो यही एक डिफरेंस होता है कि यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल कि भाई 1st अप्रैल तक जो है वो तो प्री एक्विजिशन है ही, प्लस जिस डेट पे उसने एक्वायर किया है, फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद अगर एक्वायर किया है तो आपको उसमें से 6 महीने का भी निकालना पड़ेगा प्रॉफिट. इज इट क्लियर? ओके, ऑलराइट. So let's come to one last adjustment and then maybe we can do a couple of questions and wind it up. And that is interim dividend. So interim dividend is the dividend that is being paid during the year, we know that. And this amount will, let's say it has been shown in the subsidiary accounts balance sheet during the accounting year. So what do we do? It is added to the balance of, I'll just explain that with the help of a question only. Current, sorry. पहले तो जितना भी इंटरिम अमाउंट है उसको आपने ऐड किया बैलेंस ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट को. अब क्योंकि आपने ऐड कर दिया, सी यू हैव टू नोटिस, आपको क्या करना है, ये जितना भी अमाउंट है, लेट्स से 10,000 है. सो इंटरिम डिविडेंड अगर आपका 10,000 है तो इसमें से कुछ पोर्शन तो है जो होल्डिंग को गया है, एंड देयर इज सम पोर्शन दैट हैज गॉन टू द माइनॉरिटी इंटरेस्ट. So what you will do, this is the first thing that you will do. First you add that entire amount and then the holdings share must holding को मिला deducted from the consolidated profit, and जो minority का share है, minority's share will be deducted from minority interest. अब इसको practically देखते हैं. Minority. Okay, so all of you please come on illustration 24. Illustration 24. Please just read it and then we'll start. Again the same point, that is date of acquisition.
When you're done, anybody can answer this. That is, what is the date of acquisition? I'm just waiting for the date of acquisition. Yes, anyone? What is the date of acquisition for illustration 24? 1/4/2019. Okay, 1/4/2019. And how about the ratio? How about the ratio? Anyone? Karthik, if you can tell me the ratio for illustration 24. 4:1. Right, that's 4:1. Now let's start. So let's say, let me read it for you. Holker Limited acquired 12,000 shares of Sunrise Limited on 1st April 2019 at the cost of 1,80,000. On scrutiny of the balance sheet of Holker as on 31st March, the following details are obtained. That is, surplus included the interim dividend at the rate of 10% per annum free of tax from Sunrise Limited. Stock includes 6,000 of stock at cost purchased from Sunrise Limited. Sundry creditors included 18,000 for purchase from Sunrise, on which the later company made a profit of 4,500. It is further stated that on 1st November, the surplus of Sunrise stood at 76,000. I think there is a problem here. ये 1st November क्यों लिखा हुआ है इन्होंने? 76,000 and ये I think कुछ misprint लग रहा है, but let's say अभी calculation देख लेते हैं इसको. And the general reserve at 4,500. No final dividend are yet proposed to be declared by Sunrise Limited. ठीक है? Okay, so let us see, let us consider that आपका ये 1st November की जगह इसको आप 1st 4 कर दो, 1.4.2019 वो consider करके देखते हैं. ठीक है? तो we know that एक तो है हमारी capital profit. अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, क्वेश्चन देखूं, कैपिटल प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, so considering that it is 1st April 2019, that is at the end this line, it is further stated that. So how much will that be capital profit? It will be a total of general reserve and the second thing I have is Sunrise stood at this much and general reserve with the surplus. ठीक है? So I know that general reserve is 4,500 and surplus is 76,000. Is it right? Yes or no? कोई question है यहाँ तक? ठीक है, अब एक बार adjustment पे आते हैं. See, we said interim dividend and please note all of you, जब हम interim dividend की बात कर रहे थे तो यहाँ पे कहीं भी adjustment मैंने cost of acquisition में करनी नहीं, which means मुझे capital profit में तो कोई adjustment करनी नहीं है. तो इसीलिए क्योंकि interim dividend is paid during the year, तो इसलिए प्री एक्विजिशन से मुझे कोई मतलब नहीं, कैपिटल प्रॉफिट में मैंने कोई चेंजेस नहीं करने, राइट? सो देयरफॉर मेरा टोटल कैपिटल प्रॉफिट यहां से आ गया, लेट मी ऐड इट एंड आई हैव इट एज दिस मच, 80,500. यस बेटा, why we are not calculating cost of control here? करेंगे ना, उसके बाद ही तो करेंगे कैपिटल प्रॉफिट. मेरे पास जितना आ जाएगा वो, या तो मैं ऐसे करती कि पहले वो फॉर्मूला लिखती और फिर करती. कैपिटल प्रॉफिट तो मुझे चाहिए ना माइनस करने के लिए. Are you getting it, कार्तिक? Okay, okay. ठीक है, वो आप वैसे भी कर सकते हो कि वहां से स्टार्ट कर दो. ये कैलकुलेशन तो मुझे करनी ही पड़ती, मैं सिर्फ यहाँ अलग से दिखा रही हूँ, तुम्हें पहले कर रही हूँ. ठीक है, तो वो आपकी मर्जी, आप पहले वो करो ये करो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. सो शेयर क्या है, अब मुझे देखना है होल्डिंग का शेयर. मुझे पता है रेशियो, आई थिंक यू सेड 4:5. दैट्स व्हाट यू सेड. या 4:5 इज द रेशियो. 5 of this much. ये है मेरा शेयर जो होल्डिंग का है. ठीक है, तो नाउ लेट मी कम टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लाइक कार्तिक इज सेइंग. सो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, आई नो द प्राइस दैट आई हैव पेड फॉर द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज 1,80,000. Can anybody tell me what is the cost of this shares or nominal value? हाँ बताओ. Anyone? 1,20,000. Right, 1,20,000. 1,20,000. ठीक है, इतना ठीक है. इसमें अभी एक बार देख ही लेते हैं, तो ये 60,000 के करीब आ रहा है. ठीक है, फाइन. एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू,
मुझे कैपिटल प्रॉफिट भी करना है, आई गिव यू 2 minutes टाइम. मैंने यहाँ पे ऑल्दो सब कुछ लिखा हुआ है एंड इट शुड बी क्लियर टू यू. मुझे 2 मिनट में क्या आप कैलकुलेट करके बता सकते हो गुडविल आ रहा है या कैपिटल रिजर्व आ रहा है और कितना आ रहा है? यस प्लीज डू इट ऑल ऑफ यू. आई विल जस्ट वेट. What are you getting, goodwill or capital reserve, and how much? It is very simple. I'm waiting for your answers. Anybody? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा बेटा, या तो चैट बॉक्स में लिखो या एक बार फिर से बोलो. क्लियर नहीं आ रहा आवाज आपका. Anyone? Have you written in the chat box? Let me check. How much is the goodwill or capital reserve? Anyone? Are you done? सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा. हाँ कैपिटल रिजर्व ठीक है भावना, अमाउंट बोलो भावना. Yes, great Bhavna. So I'll show you all of you. See, it has nothing to do with interim dividend because the interim dividend is paid during the year. तो मैं during the year के profit से करूंगी जो करूंगी. So इसलिए मुझे यहाँ क्या करना है? So मेरा ये price था. I have paid this much and this is the profit which comes out to be minus, which obviously means if it is coming out to be minus, this is the capital reserve. Is there any question? Please ask all of you. Clear है? Just raise your hand if the calculation of capital reserve is clear. Then only I'll go to the next point. Is the calculation of capital reserve clear? Please raise your hand if the calculation of capital reserve is clear. भावना को clear है, उसने तो खैर निकाला ही है. बाकियों का क्या? What about others? I only see Bhavna's hand. What about others? Is the calculation of capital reserve clear? Ashish, Ashutosh, Dhruv, Gloria, Karthik, Lokesh, Manali, Manan. Is it clear? Nikita, Minakshi, Rajjoti. Ma'am, please repeat once. Yes. See कार्तिक, इसमें कुछ भी नहीं है. इसका पहली बात, अगर तुम वैसे कैलकुलेशन करते तो क्या करते? सिर्फ वही है, इसमें कोई एडजस्टमेंट हुई ही नहीं है. I am repeating because interim dividend is paid during the year. So what I am doing, this is pre-acquisition profit that I need in the cost of control. So उसका जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो मैंने एज इट इज जो कैलकुलेशन करती, अगर ये सपोज एडजस्टमेंट नहीं भी होती तो मैं क्या करती? प्राइस कितना था कार्तिक? तुम बोलते जाओ ताकि समझ आए. व्हाट इज द प्राइस कार्तिक? 1,80,000. ठीक है. व्हाट इज द कॉस्ट? 1,20,000. शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट? 64,400. हाँ, तो क्या किया? 180 में से ये माइनस किया और ये माइनस किया. मैंने माइनस किया तो माइनस में आया. या दूसरा तरीका बताने का ये भी है, तो सेम भी है ना, बस उधर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड द रिजर्व लिखते थे और इसमें कैपिटल प्रॉफिट का है, बस नेम का चेंज है. हाँ, see, okay, let me clarify. I don't know why you're confused. I told you earlier also, the pre-acquisition profit is considered as capital profit. Another name for pre-acquisition profit is capital profit. And the post-acquisition profit is known as revenue profit. I have told you earlier. Revenue, yes ma'am. तो बस यही है. मैं रिलेट नहीं कर पाया, सॉरी. कोई बात नहीं. तो मतलब ये बस ये टर्म अच्छी बात है, हमने ये यूज कर लिया ताकि आपको ध्यान रहे. ठीक है. तो आप यहाँ इसकी जगह लेट मी राइट डाउन ये भी लिख सकते हो. ठीक है. नाउ लेट्स गो ऑन. सो ये तो मेरा था आपका प्री एक्विजिशन. अब करंट ईयर्स प्रॉफिट देखते हैं. तो जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है सरप्लस में अगर मैं देखूं तो the balance sheet shows 1,08,000.
नाउ आई नो सी 1,08,000 तो बैलेंस शीट में शो किया हुआ है और उसमें से प्री कितना है, प्री इज गिवन एज सरप्लस का 76,000 या राइट। तो करंट ईयर का व्हाट डू यू कॉल इट इज द या सरप्लस है, बैलेंस शीट में सरप्लस। सो करंट ईयर सरप्लस इज दैट इज इफ यू रिमेंबर टोटल minus pre that is 76,000। एक सेकंड, कैलकुलेशन में मैंने अमाउंट्स ठीक नहीं लिखे शायद, जस्ट अ मिनट। हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ की है मैंने, ये जीरो ज्यादा आ गया, ये आया। आई रिपीट, बैलेंस शीट में जो होता है वो टोटल होता है, ठीक है। ओपनिंग दिया हुआ है मुझे और रादर आई कैन से प्री एक्विजिशन दिया हुआ है, तो टोटल में से अगर मैंने प्री माइनस किया तो मेरे पास पोस्ट आ गया। इन शॉर्ट पोस्ट इज आल्सो नोन एज करंट ईयर सरप्लस। सो आई नो द करंट ईयर सरप्लस इज 32,000। now let's go back to the adjustment. So what was it saying? The amount is added in full, sorry, here is added to the balance of current year's profit of subsidiary. अब मेरे को पता है 32,000 तो मेरा टोटल है। अब इसमें से मेरा interim dividend था कितना? It is saying, let me check, A point at the rate of 10%. So 10% कितना हुआ? 1,50,000 का 10%, that comes out to be 15,000. Now this 15,000 is being added here. This is the interim dividend. So अगर मैं इसको add करती हूँ तो ये मेरा 47,000। This is 47,000। अब मुझे पता है कि ये जो 47,000 है इसमें से 4/5 तो होल्डिंग का शेयर है और 1/5 तो माइनॉरिटी का शेयर है। सो लेट मी सी, मेरा होल्डिंग का शेयर is of 47,000 is this much, and minority share by 5 of this much. मतलब basically the breakup is कि एक्चुअली करंट ईयर प्रॉफिट कितना होना चाहिए था। करंट ईयर प्रॉफिट जो भी मेरा 32,000 जो आया है, जो कि टोटल में से माइनस करके ओपनिंग आया है, उसमें मुझे जो भी इंटरिम डिविडेंड है वो मैंने ऐड किया है। सो आई रिपीट, लेट्स कम टू द एडजस्टमेंट एंड सी क्या किया। इज एडेड टू द बैलेंस ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। ये पहली एडजस्टमेंट मैंने कर दी। अब मुझे दो एडजस्टमेंट्स और करनी है। क्या वो है? होल्डिंग शेयर मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, और तीसरा क्या? माइनॉरिटी शेयर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब ये कैसे करूंगी? पहले तो इतना बता दो, यहां तक हो गया? इज इट क्लियर? प्लीज रेज योर हैंड। कैन आई गो ऑन? So the first adjustment is you have added whatever is the amount of interim profit, you have added it to the current year's profit. Now, अब मैं balance sheet पे जब आऊंगी, if you remember, when I will come to the balance sheet, मुझे minority interest दिखाना है। एक तो I will have to show the minority interest। तो पहले मैं easy से start करती हूँ। minority interest मेरा कितना है, right? So from the question, can you tell me what is the share capital? Minority interest की share capital कितनी है? Yeah, anyone? हाँ, बताओ। What is the share capital of minority interest? Anyone? 30,000. 30,000, ठीक है। मुझे ये पता है कि टोटल जनरल रिजर्व का पोर्शन यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ और टोटल सरप्लस का पोर्शन में यहाँ ऐड करती हूँ, ठीक है। तो शेयर इन, लेट्स से जनरल रिजर्व करते हैं पहले। सो या हाउ मच इज द, पहले शेयर मत बताना मुझे, मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल जनरल रिजर्व। एनीबडी? व्हाट इज द टोटल जनरल रिजर्व? कैन एनीवन टेल मी? 6,000. Very good, Karthik. So 6,000 because it's in the balance sheet. So I think this is minority interest, so which will be 1/5 of 6,000. This comes out to be share in general reserve. Now I have to take the share in surplus also.
in surplus also. Now, what is the surplus? If I look at it, yeah. See, be very, very careful about it, okay? Balance sheet में मुझे दिया हुआ है 1,08,000. क्या बात हुई थी कि भाई जितना भी डिविडेंड है ऐड होगा, जो कि है 15,000. तो एक्चुअली बन गया 1,23,000. तो इसका शेयर कितना है? 1/5 ऑफ 1,23,000 and therefore the share is 24,600. But मैम ये 15,000 वापस एक बार बोलिए ना, कहाँ से हाँ, है? बता रही 15,000 हूँ, एक सेकंड रुको. क्या बोला था हमने ये बोला था, यहाँ पे आ जाओ एक सेकंड, ये वाली एडजस्टमेंट है ना, is added to the balance of current year's profit of subsidiary. So यहाँ जो मेरे पास था, मेरे पास एक्चुअली सरप्लस कितना था? 1,08,000 का, मुझे पता है. लेकिन इस 1,08,000 में मैंने क्या करना है? इंटरिम डिविडेंड को पहले ऐड करना है. ठीक है, जब मैंने ऐड किया इंटरिम डिविडेंड 15,000 का, तो एक्चुअली मेरे पास आया 1,23,000. इसका शेयर इतना था. तो टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट इतना है. लेकिन अब पॉइंट आएगा, अब आपको जितने भी कंफ्यूजन है वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे. लेकिन ये जो इंटरिम डिविडेंड है, इसमें से आपने इंटरिम डिविडेंड माइनस अभी नहीं किया है. क्यों नहीं किया? क्यों ऐड बैक किया? क्योंकि हम खाली माइनॉरिटी इंटरेस्ट का इंटरिम डिविडेंड ही तो माइनस करेंगे, पूरे का पूरा 15,000 थोड़ी करेंगे. सो देयरफॉर हियर व्हाट आई विल डू इज, अब मैं यहाँ पे करूंगी लेस इंटरिम डिविडेंड. वो कितना था? कितना था एनीबडी? 1/5 15,000. एक्चुअली माइनॉरिटी इंटरेस्ट का तो है 3,000, तो हम 15,000 का 15,000 उसके में से क्यों माइनस करेंगे? इसीलिए हमें पूरा इंटरिम डिविडेंड प्लस करना पड़ा पहले, उसके बाद हमने ये इंटरिम डिविडेंड माइनस किया है. तो मेरे पास जो एक्चुअल माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया वो क्या है? दिस है एक्चुअल माइनॉरिटी इंटरेस्ट. I repeat, what we have done is cost of control में कोई चेंज नहीं है, as it is आ रहा है. ठीक है. Now the second thing that we did was, जो मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट था उसमें मैंने ऐड किया आपका इंटरिम डिविडेंड. ठीक है, जो भी शेयर आ गया वो हमें दिख गया. अब जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी मेरा जो टोटल प्रॉफिट था उसमें मैंने 15,000 ऐड किया. क्यों? क्योंकि वो 15,000 तो टोटल है, मुझे खाली माइनॉरिटी इंटरेस्ट का माइनस करना है. उसको ऐड करने के बाद मैंने वो माइनस किया जो कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर है, एंड दैट इज हाउ आई गॉट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट. टिल हियर इज इट क्लियर? If there is a question, please ask. Any doubt? Okay, yes. So, is it clear? Because अब रह गई लास्ट कैलकुलेशन. कोई मुझे बताएगा ये लास्ट कैलकुलेशन कौन सी कैलकुलेशन है? एनीवन? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द लास्ट कैलकुलेशन? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकल चुका, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल चुका, एक तीसरी चीज रह गई. क्या है वो? एनीवन? Reserves and surplus. यस, राइट, करेक्ट. रिजर्व एंड सरप्लस. करेक्ट. वो रिजर्व एंड सरप्लस पे आते हैं. तो देखते हैं, पहले हम चलते हैं, आपका जनरल रिजर्व है और आपके पास है सरप्लस. So the general reserve that I have is, sorry. तो मेरी ऑलरेडी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व एच का दिख रहा है 1,90,000 का. ठीक है, देयर इज 1,90,000 दैट आई ऑलरेडी हैव. अब क्या करूं? इसमें क्या ऐड करूं? बताओ जी. मैम पोस्ट वाले में हाँ. हाँ, मतलब जब मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया था, ये वाला तो मैंने किया था सरप्लस का. ठीक है, वो वाला भी दिखा देती हूँ आपको. मैंने किया नहीं क्योंकि वो सिंपल था. तो लेट्स से जनरल रिजर्व की अगर मैं बात करूं, करंट ईयर्स जनरल रिजर्व, करंट ईयर्स जनरल रिजर्व दिया है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है 6,000 का, आई नो, और ओपनिंग दिया हुआ है आई थिंक 4,500 का है. कितने का है? 4,500 है ना. ओपनिंग जनरल रिजर्व इज 4,500. यस, 4,500.
तो ये आ गया मेरा 1500. 1500 में से होल्डिंग का शेयर कितना है? दैट इज 4:5 ऑफ 1500. सो जनरल रिजर्व एक्चुअली यहाँ पे आ गया मेरा 1200. अब मुझे ऐड करना है सरप्लस. सरप्लस की कैलकुलेशन मैंने ऊपर की थी. और इज द शेयर ऑफ होल्डिंग, दैट इज 37,600. तो ये आ गया मेरा 37,600. अब यहाँ तक अगेन द थिंग इज सेम कि ये सारी चीजें मैंने ऐड कर दी. एंड अगेन जैसे मैंने वहां डिविडेंड उसके शेयर का लेस किया, तो यही लेस द शेयर ऑफ डिविडेंड, जो कि हो गया तुम्हारा 3000 यहाँ था, 15,000 में से 3000 गया 12,000. बट प्लीज नोट, एक पॉइंट और है यहाँ पे, एक एडजस्टमेंट और है यहाँ जो हमें करनी पड़ेगी प्रॉफिट के लिए, और वो है ये आपकी sundry creditors include 18,000 for purchase from Sunrise, on which later made a profit of 4,500. Yeah, what does it mean? इसका क्या impact होगा? It is an unrealized profit की what do you call adjustment. मुझे बताएगा कि इसका क्या impact होगा. Sundry creditors includes 18,000 for purchase from Sunrise Limited, on which the later company made a profit of 4,500. बताओ, how much will be the unrealized profit be? Anyone? बोलो. बोलो जी. 4,500 ऊपर लिखा भी हुआ है. स्टॉक इंक्लूड 6,000 ऑफ स्टॉक, मतलब कि 18,000 का स्टॉक था जिसमें से 6,000 अभी भी बचा है. अगर वो यूनिटरी सिस्टम 18,000 पे 4,500 का प्रॉफिट बना रहा है, 6,000 पे कितना प्रॉफिट बना रहा है, जिसे कि मैं कंसिडर करूंगी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. दैट इज 4,500 डिवाइडेड बाय 1000 है ना, हाँ, इनटू 6,000. सिंपल यूनिटरी सिस्टम. यहाँ मुझे इक्वल टू 1,500, तो ये 1,500 मुझे और माइनस करना पड़ेगा. 12,000. Is it clear? Is this calculation clear? So this will come out to be, ये मैंने माइनस करके किया है कि नहीं किया? हाँ, ये मैंने ऐड कर दिया, और ये आई थिंक ये सारे आई थिंक माइनस करने पड़ेंगे. ये आ गया आपका 215,300 whatever. ठीक है. 12,000 और 1,500. ठीक है. ओके. Is it clear? Any question? Just repeat. Interim dividend is basically, मुझे क्या करना है? मुझे पहले उसे ऐड करना है. ऐड करने के बाद जो माइनॉरिटी का शेयर है वो माइनॉरिटी में से माइनस करना है, और जो होल्डिंग का शेयर है वो होल्डिंग में से माइनस करना है. ठीक है. I think with that I have a few more things that I would like to talk about and then wind up. Just let me check. Because now you can practice all the questions and we will take up the doubts maybe in the tutorials or in the class, whatever. So yeah, with this, the last thing that we have for today or winding up of holding company is, see again, you will see it on page number 12.113. That is IND AS 110. ठीक है. आपका जो AS 21 है, AS 21 वो आपको बता रहा है consolidated balance sheets के बारे में holding की. So you can come to page number 12.114 also. एंड उसमें बस वही डिफरेंसेस हैं कि IND AS 110 जो है न्यू, उसको कैसे आपने ट्रीटमेंट दिया होल्डिंग का, और और जो आपका पुराना AS 21 है उसमें होल्डिंग का क्या बेसिकली डिफरेंस है. सो आई थिंक विद दैट दैट्स प्योरली theory. You can see that, and because we're not really doing the application of that, I think I will wind up. But please note, I would like you to specially do questions like, maybe you can do illustration 37 because it has been BCom program May 2018 question. Then you have illustration 38, even that was there in 2019. You can do that. 37, 38, because we're meeting on Tuesday now, right? You can do 36. In fact, I would want you to do all the questions, practice. जो भी जहाँ भी problem आएगी, we can talk about that. 36 is also again asked in the examination. Even 35 has been asked.
34 has been asked. You can check that. Okay. So I think with that, yes, before I wind up, any questions, all of you? Any doubts up till here, holding company? Because this is like the toughest, I think, chapter in your syllabus.